हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में बहुत बड़ी खबर के साथ। जी हां दोस्तों, एसीएफ पर हाई कोर्ट का आदेश आया है और एक आदेश आने से याद रखिएगा, अगर एक भर्ती का रास्ता खुलता है तो सारी भर्तियों का रास्ता खुल सकता है। आज हम बात करेंगे कि क्या 50% आरक्षण पर आने वाले समय में भर्तियां या नियुक्तियां हो सकती है। क्या है इस कोर्ट के आदेश से, हम पूरा विस्तार पूर्वक समझेंगे और समझाना चाहेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे 28 मार्च की डेट पे जो है यहाँ पे बताया गया है कि मिस्टर अभिषेक सिंह और जो भी एडवोकेट थे वो भी पूरा बताया गया। इसमें बताया गया द पिटिशनर हैव क्लियर्ड छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2020 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रेंजर एंड असिस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एज पर द एडवर्टाइजमेंट डेट 4/6/2020 को निकला हुआ था वो विज्ञापन, और उसके लिए ये जो है बोल सकते हैं याचिका दायर की गई थी। इसमें बताया गया था कि जो सीनियर काउंसिल फॉर द पिटिशन वुड सबमिट दैट द अमेंडमेंट इन छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस 1994 बाई छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम 2011 वेयर द रेशियो ऑफ रिजर्वेशन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 50 से 58% वाज पुट टू चैलेंज इन जो केस था उसमें 19 सितंबर 2022 को उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसमें बताया गया ही वुड future submit that the said right petition has been allowed by the honorable division bench of this court, therefore the reservation of the post will be जो है government by the rule which where is जो existing है period to amendment in the rule, as such the reservation cannot be exceed more than 50%. he would further submit, इसके बाद आगे बताया गया है जो अगला पेज है उसमें बताया गया है that the petition have cleared their examination and the interview of the candidate for appointment was notified from 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर the wide in notification date 6/10/2022 the interview proceeding has been stay by the state and memo date 31/10/2022 has been issued by the Secretary General Administration Department by which status with regard to selection process have been direct to be maintained till the Honorable Supreme Court pass and stay order with regard to judgment passed by Honorable Division Bench of the court. He would further submit that the Honorable Supreme Court has not stayed the order of Honorable Division Bench till today. Withholding of interview processing is nothing but on the part of respondent as such as would pray for stay of the order. फिर बोला गया है कि he would further submit that since the Honorable Supreme Court has not stayed the order passed by the Honorable Division Bench, therefore there is no impediment for the respondent to proceed with the appointment proceeding. He would lastly submit that the petitioner are crossing the age for appointment and his selected processing is not reached to logical end. Through they have cleared the examination but they will not be given appointment on account of crossing the age which may जो adversely affected their career. On the other hand, learn state council would submit that the judgment passing by Honorable Division Bench is subjected to challenge before Honorable Supreme Court. जो उसका जो केस नंबर है वो बताया गया। Therefore the submit that जो made by the petition may be rejected. उसके बाद बताया गया learn the counsel for the petition would submit that the mayor by filing of the appeal does not amount to stay the judgment as per order 41 rule बताया गया। इसमें available the present fact of the case and the जो sustainable his submission he would there the judgment Honorable Supreme Court in case of, ये बताया गया जो केस का नाम बताया गया, एग्जाम्पल दिया गया है। इसके बाद बताया गया considering the fact that is advertisement itself it is made clear that the appointment will be subjected to outcome of the decision the right petition number 512 and the said right petition has been allowed which has been challenged before the Honorable Supreme Court and no stay order has been passed by the Honorable Supreme Court. Therefore issue of memo date by which the interview has been stay and memo date 31/10 by which status
with regard to selection process has been ordered and deserve to be stay, and it is directed that let the selection processing may reach to the logical end. The appointment made in presence of selection process will be subject to final outcome of the written right petition pending before Honorable Supreme Court and this court. It is petition to mention here that which is also listed along the present right petition has the state has issue appointment order of the candidate after the judgment of the division bench number 19/2023. The state cannot take double tender for appointment in state service. They are issue appointment order in medical college of class 3 and class 4 employee, and present selection process have been withheld by them. It clearly reflects that the state are adopting pick and choose policy which is violence of article 14 and 16 the Constitution of India. और इसके बाद अगला 20 अप्रैल का डेट बताया गया है। इसका मतलब ये साफ है कि आप लोगों को ये पूरा आदेश मैंने आपके सामने पढ़ा और इसका पूरा आदेश का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो इससे जो हमें समझ आ रहा है वो एक चीज़ ये है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा था कि जब 2012 में 58% आरक्षण लाया गया था, तो हर भर्ती में हर नियुक्ति में उसके नीचे में एक पॉइंट लिखा रहता था कि ये जो है जो वहाँ पे उस समय केस लगा था, जब 58% हुआ था तो केस लगाए गए थे कि 58% कैसे हो गया, तो उस केस के अधीन रहेगी। उसी प्रकार से फिर ये जो ACF का इंटरव्यू है उसको जो है वो आगे बढ़ाने का बात कही है, क्योंकि PSC ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उस पर यथास्थिति बनाए रखे हुए हैं। तो कोर्ट ने ये बोला कि भाई आप जो है इस प्रोसेस को अपने लॉजिकल एंड तक थोड़ा सा आगे बढ़ाए और जो एग्जिस्टिंग है अभी वर्तमान में जो रूल है रिजर्वेशन का उससे आगे बढ़ाए। इस प्रकार से जो समझ में आ रहा है वो फिलहाल हो सकता है इसमें थोड़ा चेंजेस हो सकता है या हमारे समझने में गलती भी हो सकती है, लेकिन जो हमें समझ आ रहा है जिसमें जो वकील है और जब आदेश को और पढ़ेंगे तो और समझ आएगा। लेकिन ये प्रारंभिक जो अभी आदेश आया है तो मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ, तो इसमें ये बोला गया है जो हिसाब से कि भाई अब जो है आप जो प्रोसेस है इंटरव्यू को उसको लीजिए, ऐसा बताया गया है। इसके बाद अब कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लोग जो तैयारी छोड़ दिए थे वो वापस से तैयारी करने लग जाइएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि इंटरव्यू जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जाए। मतलब अभी इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो होगा, इस प्रकार से बताया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि क्या वो 50% आरक्षण पे होगा कि 58% आरक्षण पे होगा। जहाँ तक हमें समझ आ रहा है कि ये जो है फिर से 50% आरक्षण पर होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। अब इस पर कितनी जो है इस पर जो क्लैरिफिकेशन है वो थोड़े जो दिन बाद जैसे जैसे खबरें छन के आएगी वो और क्लियर होते हुए जाएगा। दूसरी तरफ कहा जा रहा है, सुनाई में जो दे रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग जो है 21 अप्रैल को होने वाली है, जहां पे जो पीटी और जो जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम है उसके मद्देनज़र जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो जा सकती है, बोल सकती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में कि भैया आप जल्दी से कुछ भी फैसला दो, 58% पे स्टे दो, क्योंकि हमको बच्चों लोगों का एंट्रेंस एग्जाम लेना है। इस प्रकार से जो है तरह तरह की खबरें आ रही है और बताया भी जा रहा है कि एक बहुत बड़ा जो आंसर है वो सबमिट किया गया है। अब देखने वाली बात है सरकार के द्वारा क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन जो भी है कहीं ना कहीं एक अभ्यर्थियों में आशा की किरण है। ACF का मैटर है, 211 पदों पर भर्ती होनी है और हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं अपना जो डिसीजन तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक आदेश जो है बोल सकते हैं दिया है, और उसके बाद अगली सुनवाई लगभग 20 अप्रैल को है बताई जा रही है। अब देखने वाली बात है क्या होता है, कैसे होता है। फिलहाल यही आप सभी को बताना था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो समझ आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इस आदेश से आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या समझ आया।